Hello everyone. Today we will touch upon a very important news item. The item deals with a very old ill that is plaguing India's society, which is caste and casteism. This is also an area of public policy making. So public policy making always has certain gray areas. There will be certain section of society who will support the government's public policy. There will always be a certain section who will oppose the public policy. But you, as aspiring civil servants, have to form an informed opinion. You have to listen to the merits of each side. You have to look at the both sides of the coin and then make an informed call, make an informed judgment. You have to show in your interview or in the mains answer writing that yes, you are aware of the provisions of the constitution. Yes, you are aware of something called constitutional morality. Yes, you are aware of something called scientific temperament. Yes, so you try to demonstrate all those qualities, all those officer like qualities in your answer writing or in your interview as well. Talking about today's topic, as you are aware, the Karnataka government, they are carrying out a caste survey, or to be more specific, they are carrying out a socio-economic educational backwardness survey. They are trying to look at the relative backwardness that is prevailing in the state of Karnataka. According to the author, Narayan Murthy and Sudha Murthy, although they have decided to opt out of Karnataka survey, although they benefit from the oldest freebie system that is prevailing in this country. According to the author, the author has made certain assertions he has made, I would rather say, because they are, after all, not my opinion. They are not the opinion, your opinion. They are the opinion of the author. And when we discuss this article, we should not become agitated or angry. We should try to look at the articles in a very scientific manner. We should look at the arguments on their own merits and then try to see if the decision that has been taken by Sudha Murthy and Narayan Murthy not to participate in their state's caste survey, is that a right decision? Is that a decision which deserves criticism? Or is it within their domain that yes, they are free to do whatever they want to do, and it's a voluntary decision, and we should not criticize it too much. So this article will help us in answering that particular question in an informed manner. So according to this article, recently when Karnataka government decided that they will carry out a caste survey to see the relative socio-economic educational backwardness that is prevailing in the state, it was challenged by a certain section of society in the High Court. High Court then said that yes, you can carry out this survey as long as the survey is voluntary in nature. Okay, so अगर as long as survey जो है voluntary के nature में, वो किसी पर binding नहीं है, तो आप ये जो सो कॉल्ड कास्ट सर्वे है वो कैरी आउट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन दैट इट इज नॉट अ सेंसस। नोवेयर दे हैव यूज्ड द टर्म सेंसस, बिकॉज सेंसस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन में है। सो इट्स इसको बेसिकली एक सर्वे का नाम दिया गया है, एक इनफॉर्मल सर्वे का नाम दिया गया, जिसमें पीपल हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। सो उन्होंने ऑप्ट आउट किया, और सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने जब ऑप्ट आउट किया है, so they said that yes, since we belong to upper caste, we do not belong to a backward community. और ये जो सर्वे है ये बैकवर्डनेस गेज करने के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। सो हम चूंकि वी कम फ्रॉम अ ब्राह्मण कम्युनिटी, यानी सो कॉल्ड अपर कास्ट, सो इससे हमारा को कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हमारे पार्टिसिपेट करने से। ये उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन उसमें दिया है। उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर दी फॉर्मर CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इन्फोसिस, मोहनदास पाई। He has also taken a pot shot. He has also criticized the present caste survey that is being conducted by the government of Karnataka. And similarly, a very famous MP of BJP, Tejasvi Surya, he has also said that कि गवर्नमेंट इससे क्या कर रही है, गवर्नमेंट द लोगों को ना बाइकआउट करना चाहिए गवर्नमेंट के इस सर्वे का, क्योंकि ये सर्वे कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उसको कास्ट लाइंस के अलोंग डिवाइड कर रहा है। तो जो ऑथर है, who also happens to come from an upper caste background, he says that कि जो लोग हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, he says कि जो लोग हैं, मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, मोहनदास पाई, जो लोग हैं, या फिर तेजस्वी सूर्यन, they all come from a privileged background, not only in economic terms but also in social terms. They are all Brahmins, they all belong to the upper caste. Even the author himself belongs to the upper caste, and he says कि भाई हम सब लोग ये स्टैंड अफोर्ड कर सकते हैं लेना, क्योंकि वी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द कास्ट सिस्टम। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये जो कास्ट जो सिस्टम है इंडिया में जो आज भी प्रिवेल कर रहा है, ये एक तरह की ओल्डेस्ट, और कह सकते हैं कि एक तरह की लार्जेस्ट फ्रीबी स्कीम है जो कंट्री के अंदर चली आ रही है सदियों से।
और ये जो स्कीम है ये कुछ एक माइनर सेक्शन को बेनिफिट करती है एट द कॉस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द बेनिफिशियरीज, दे आर नॉट एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। So they can say, yes, we do not believe in caste and we will not take part in this survey. So according to the author, in particular, if we talk about the caste system, he has said that ये जो caste system है, this is the, as I already mentioned, this is the oldest and maybe the largest freebie scheme that has been running in India since thousands of years. और ये जो स्कीम है इसने एक्सक्लूसिवली जो एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है कॉल्ड अपर कास्ट है, जिससे कि नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, पाई और तेजस्वी सूर्या बिलोंग करते हैं, उन जैसे लोगों ने बेनिफिट किया है एट द कॉस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऑल्सो इन्होंने ऑथर ने एक असर्शन और किया है कि जो जो ये कास्ट सर्वे जो सरकार करा रही है, ये एक 60 क्वेश्चन का सर्वे है, क्वेश्चन है, डिटेल्ड सर्वे है। और इसका आइडिया बेसिकली एक पॉजिटिव आइडिया है। इसका आइडिया है कि जो रिलेटिव बैकवर्डनेस प्रिवेल कर रही है सोसाइटी के अंदर, बैकवर्डनेस उसको गेज करना, रिलेटिव बैकवर्डनेस को गेज करना, सो दैट गवर्नमेंट कैन टेक सर्टेन इनिशिएटिव्स टू एम्पावर दी जो लोअर कास्ट है उनको एम्पावर कर सकें। जबकि अकॉर्डिंग टू ऑथर ये जो लोग हैं नारायण मूर्ति, तेजस्वी सूर्या, दे आर लुकिंग एट this whole exercise as a threat to their privileges, to their freebie scheme, and they are not trying to, their decision not to cooperate is not a right one. Indian constitution has article 14 to article 80 right to equality, still the caste system is prevailing in even in modern India. So it has not become irrelevant, it has become irrelevant। जो caste है वो so called अपर कास्ट लोगों के लिए मे बी वो एक तरह से irrelevant हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दैट इल, है ना। देर आर पीपल लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, there are people, senior IPS officer Haryana cadre who recently committed suicide, Y Puran Kumar. These are the people who are suffering from the ill of caste. According to author, लोग अपर कास्ट हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, पाई है, तेजस्वी सूर्या है, मूर्ति हैं, इनके हिसाब से जो अफर्मेटिव एक्शन का जो सिस्टम रहा है इस देश के अंदर, जो रिजर्वेशन का सिस्टम रहा है, उसने मोर देन जो रिक्वायर्ड था हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस उसको कॉम्पनसेट कर दिया है, और उन पे जो भी सदियों से जुल्म हो उसको भी कॉम्पनसेट कर दिया है। और अब फर्दर कोई किसी प्रकार के स्पेशल ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा ऑथर ने इसमें कहा है, जो कि एक सही ओपिनियन नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। और ये जो उनका डिसीजन है, इनका जो इसको पार्टिसिपेट नहीं करने का, एक तरह से उसका बॉयकॉट कर देने का, या वो एक तरह से बॉयकॉट कल्चर जो है, या जिसको कहते हैं कैंसल कल्चर, उसको कहीं न कहीं बढ़ावा देता है, जो कि सही नहीं है। व्हेन इट कम्स टू एमपीज़, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इट कम्स टू रिस्पेक्टेड, और जो कहीं न कहीं एक रोल मॉडल है लोगों के लिए, लार्जर सोसाइटी के लिए, ऐसे लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। इसी की बात कर रहे हैं ऑथर, इसके अंदर फर्दर अपने आर्गुमेंट्स को वो एक तरह से स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि भई ये एक लार्जेस्ट स्कीम है जिसने अपर कास्ट को ही है ना बेनिफिट दिया है, और ये डेटा में भी निकल के आ रही है ये चीज़। ना व्हेन यू लुक एट द डेटा, जो आप देखते हो कि भई अ, जो रिसोर्सेज़ हैं, कैपिटल है, लैंड है, एजुकेशनल अचीवमेंट है, कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, उसमें डिस्प्रपोर्शनेट डिस्प्रपोर्शनेट उनका एक तरह से शेयर है उसके अंदर। अगर आप वेज रेगुलर अगर आप देखें वेज वर्कर्स को, तो उसमें जो है लोअर कास्ट के लोग भी नहीं, उनका प्रोपोर्शन समवॉट बहुत कम है, जबकि जो अपर कास्ट है, जनरल सो कॉल्ड जनरल कास्ट है, जिनके लिए कास्ट मैटर नहीं करती, उनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। ऐसे हायर एजुकेशन जो कि एक इकोनॉमिक वेलनेस वेल-ऑफनेस का इंडिकेटर है, उसमें भी ओबीसीज जो हैं उनका प्रोपोर्शन डिस्प्रपोर्शनेट ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही जो लिंगायत से वोकालिकास हैं, जो कि डोमिनेंट कास्ट हैं कर्नाटका के अंदर, उनकी पॉपुलेशन तो 26% है, बट उनका जो शेयर है असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर सीट्स का, वो ऑलमोस्ट डबल है, 46% है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें ये इस तरफ इन्हीं सब चीज़ों को बेसिकली देखने के लिए जो डिमांड्स हैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके लिए कास्ट सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑथर ने कहा है। और ऑथर ने ये भी कहा है कि भई अल्टीमेटली गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है, उसको वो साइंटिफिक होना चाहिए। वो ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं एविडेंस बेस्ड या डेटा ड्रिवन अगर आपको पॉलिसी मेकिंग बनाना है, तो उसके लिए कास्ट सर्वे इंपॉर्टेंट है। इसका और क्या फ़ायदा होगा, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, वो बेटर टारगेटिंग हो पाएगा। जो एरर है ओमिशन की और कमीशन की, वो कहीं न कहीं बहुत कम हो जाएँगी और बेटर टारगेटिंग हो पाएगा।
और जो हमारा एक समावेशी विकास, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो हमारा गोल है, वो पूरा हो पाएगा व्हेन द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर शेयर्ड विद एवरीवन। जो विकसित भारत की जो हमारी अवधारणा है 2047 तक, वो पूरी हो पाएगी, और कहीं ना कहीं जो स्पिरिट है सबका साथ सबका विकास, दैट विल बी फुलफिल्ड इन ए ट्रू मैनर by ensuring the participation of lower caste along with the upper caste. So ये जो डिसीजन है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल लाइक, या ये बिजनेसमैन भी हैं, है ना, रोल मॉडल भी हैं, तो इनको देख के बाकी लोग भी डिसीजन लेते हैं। एंड चूंकि ठीक है, वो लोग इस चीज से सफर नहीं कर रहे, बट इट इज देयर ड्यूटी टू नेशन बिल्डिंग में अपना अपना कंट्रीब्यूट करें। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो ये बॉयकॉट कल्चर को बढ़ावा दिया है, या जो कैंसल कल्चर को बढ़ावा दिया है, वो उन्होंने ठीक नहीं किया अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम कास्ट सिस्टम, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दी लार्जेस्ट ओल्डेस्ट जो फ्रीबी स्कीम है उसका बेनिफिट ले रहे हैं। उनके लिए मे बी कास्ट इज रिलेवेंट, बट बाकी लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। और पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जो रिच डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, उन्होंने रेयरली, है ना, अपनी स्वेच्छा से सुओ मोटो दे हैव गिवन अप देयर प्रिविलेजेस, और जो कोई प्रिविलेजेस उनसे छीनी गई हैं या उन्होंने दे हैव रिलक्टेंटली गिवन अप, दैट इज ओनली थ्रू सोशल मूवमेंट्स एंड थ्रू ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लाइक जस्टिस पार्टी मूवमेंट इन तमिलनाडु, जो द्रविड़ मूवमेंट है, through temple entry movements in pre-independence India, through initiatives like Mahad Satyagrah by people like B.R. Ambedkar, you know, for equal rights for lower caste at par with the upper caste, है ना, it was done in 1927, it was a public tank में पानी पीने का उनको भी अधिकार हो। तो ऑथर ने कहा है कि भाई nobody will give up their privileges voluntarily because they are the beneficiaries of this freebie system, freebie scheme. So it can only come through government, it can only through come from gradual reforms and social movements। और उसी डायरेक्शन में ये जो कास्ट सर्वे हो रहे हैं, जैसे बिहार में हुआ या कर्नाटका में हो रहा है या इंडिया में नेशनल लेवल पे भी करने की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे देश वीकन नहीं होता, इससे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो स्केल है, वो हम लोग क्वांटिफाई कर पाते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है, अगर हम उसको मेजर कर पाएंगे तो ही हम उसको सॉल्व करने के डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं तभी हम लोग एक डेटा बेस्ड या एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेंगे, और विकसित भारत की जो अवधारणा है उसको मूर्त रूप हम लोग दे पाएंगे। So that is this article is all about, and in the end I will leave you with what Dr. B.R. Ambedkar has said, that जो कास्ट है वो फाइन है, दैट इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, बट प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी ये है कि एवरी सोसाइटी रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है दैट इज आल्सो डिवीजन ऑफ लेबरर्स एज वेल। सो देयर इज ए भाव ऑफ एक इमोशन ऑफ कि एक बंदा अपर है, एक बंदा लोअर है, एक बंदा समहाउ दूसरे से है ना ज्यादा प्रिविलेज्ड है या डिजर्विंग ऑफ मोर मोरल वर्थ, और एक बंदा है इज डिजर्विंग ऑफ लेस मोरल वर्थ। ये जो भावना आ गई है इसमें कास्ट सिस्टम में, वो प्रॉब्लम है। सो अल्टीमेटली इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर्स, और ये फिर मेरिट पे भी बेस्ड नहीं है, ये कोई है ना नेचुरल एप्टीट्यूड पे बेस्ड नहीं है, ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये दिस इज समथिंग व्हिच इज डिटरमाइंड बाय योर बर्थ, व्हिच इज एन एक्सीडेंट ऑफ लाइफ, व्हिच इज ए मैटर ऑफ फेट। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इलॉजिकल और इमोरल चीज है, तो इसको हमें खत्म करने की जरूरत है। सो विद दिस वी विल एंड टुडेज डिस्कशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।